मोदी जी जाते हैं तो दुनिया को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। ये बात हमको समझ। क्या बोला तूने? देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। ये खबर है, उससे मुतालिक पहले एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वीडियो देखें। From the very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us in getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. Think about it from our perspective. We have serious reasons to believe that agents of the government of India could have been involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, and India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention. That is of concern to countries around the world, because if a given country can just decide that their diplomats of another country are no longer protected, that makes international relations more dangerous and more serious. But every step of the way, we have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats. This is not a fight we want to be having right now, but we will unequivocally always stand up for the rule of law, because that's who Canada. ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, और वो बता रहे हैं कि भारत की एजेंसियां कनाडा के अंदर कनाडा के नागरिकों को, जो कि सिख समाज के हैं, उनको उनकी हत्या में शामिल हैं, और भारत के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगाए थे, और उसके बाद भारत के साथ दोनों देशों के आपस में रिश्ते ख़राब हुए, और यहाँ तक रिश्ते ख़राब हुए कि भारत ने अपने जो दूतावास के कर्मचारी थे उनको वापस बुला लिया था, और कनाडा के लोगों को यहाँ से निकालने के लिए हुक्म जारी कर दिया था। 40-42 लोग कनाडा के भारत के राजदूत, भारत के दूतावास में जो थे, कनाडा के दूतावास में, उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। अब से पहले इस तरह की खबरें आती रही हैं कि इसराइल के एजेंट्स जाकर के दूसरे देशों में हत्याएं करते हैं, अमेरिका के एजेंट्स जाकर के हत्याएं करते हैं, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी खबरें आती हैं, रूस के मुतालिक भी इस तरह की खबरें मिलेंगी आपको। अब ये भारत के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मामला है, और सीरियस इसलिए ज़्यादा हो गया कि कनाडा के आरोप लगने के बाद भारत ने उसको सिरे से रद्द कर दिया था कि इस तरह की कोई बात सच नहीं है, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, गलत हैं। मगर अब एक और बड़ी खबर है
पहले वो खबर थोड़ा सा बता देते हैं आपको। और ये अमेरिका से खबर है, और अमेरिका से जो खबर आ रही है वो बिल्कुल हिला देने वाली खबर है, ये समझ लें। क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो छोटी घटनाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने हैं। कनाडा दुनिया का एक बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और वो यूरोप के देशों के साथ, अमेरिका के साथ क्लब किए हुए है, उसके बहुत अच्छे संबंध अमेरिका के साथ हैं। अब कनाडा की तरफ से आरोप लगे, भारत ने उसको रद्द कर दिया। ये तमाम बातें निराधार हैं, ठीक नहीं है। अब जो आरोप लगे हैं वो लगे हैं अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका ने भारत को बताया है कि अमेरिका के एक नागरिक को की हत्या में भारतीय एजेंसियां हत्या करने की कोशिश में, और वो सिख यानी खालिस्तान समर्थक है, पन्नू, गुरपंत सिंह पन्नू उसका नाम है, उसकी हत्या की कोशिश भारत की एजेंसियों के जरिए की गई। अमेरिका ने, पूरी खबर आपको बताते हैं, अमेरिका ने अमेरिकी ज़मीन पर सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया, और ये आरोप भारत के ऊपर लगाया गया है। भारत ने अमेरिका में रहने वाले एक खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी की हत्या की नाकाम साजिश को लेकर लग रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने कुछ अपराधियों और आतंकवादियों समेत अन्य को लेकर कुछ जानकारियां साझा की थी, जिसकी जांच चल रही है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि अमेरिका ने अमेरिकी ज़मीन पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया है, और इस साजिश में भारत सरकार के शामिल होने से जुड़ी चिंताओं को लेकर चेताया है। अमेरिका की ओर से अभी तक इस रिपोर्ट में लगाए आरोपों पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। अखबार के मुताबिक, अखबार जो लिखता है फाइनेंशियल टाइम्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा अखबार है ब्रिटेन का, तो वहाँ से कोई खबर हवा में नहीं आएगी। अखबार के मुताबिक इस साजिश के निशाने पर अमेरिका और कनाडा के नागरिक गुरपंत सिंह पन्नू थे, जो स्वतंत्र सिख देश खालिस्तान बनाने के अभियान में शामिल संगठन सिख फॉर जस्टिस के वकील हैं। गुरपंत सिंह पन्नू को साल 2020 में भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। इससे पहले इस साल जून में कनाडा में सिख अलगाववादी हरप्रीत सिंह निज्जर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के विश्वसनीय आरोप हैं। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बताया था। हालांकि इस बार अमेरिका में कथित रूप से नाकाम साजिश को लेकर आई खबर पर भारत ने जांच जारी करने की बात कही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जून में कनाडा में सिख अलगाववादी हरप्रीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश की जानकारी अपने सहयोगियों के साथ साझा की थी। जून में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक वाशिंगटन दौरे के बाद अमेरिका ने इस संबंध में आपत्ति जताई थी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत को राजनयिक स्तर पर चेतावनी देने के अलावा अमेरिका के संघीय आयोजकों ने एक कथित साजिशकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में मामला दायर किया है। अभी अमेरिका के न्याय विभाग में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इस मुकदमे को सार्वजनिक किया जाए या फिर कनाडा को निज्जर की मौत की जांच पूरी होने दी जाए।
अमेरिका ने इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की है। जब ट्रूडो ने वैंकूवर में निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए, अखबार के मुताबिक इन मामलों में एक जैसा पैटर्न होने की संभावनाओं को लेकर इन देशों में चिंताएं जताई हैं। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक अमेरिका के न्याय विभाग और FBI ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी ये कहते हुए टिप्पणी से इनकार कर दिया है कि यह कानूनी मामलों और गोपनीय राजनयिक संवाद को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करती है। अखबार का कहना है कि इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह नहीं बताया कि भारत को इस संबंध में आपत्ति जताए जाने के बाद साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना बदली या फिर FBI ने दखल देकर अंजाम दी जा रही किसी साजिश को बेनकाब किया है। अब ये जो खबर आई है ये बड़ी भयानक खबर है, क्योंकि भारत का दोस्त है अमेरिका, भारत का दोस्त है कनाडा, भारत का दोस्त है इसराइल, भारत का दोस्त है ब्रिटेन, क्योंकि ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स में भारत पूरी तरह से अमेरिकी ब्लॉक में शामिल है। अब अमेरिका के अंदर भारत की एजेंसियां अगर इस तरह का कोई काम कर रही हैं तो वो बहुत ही सीरियस मैटर है। और सिख जो समाज है भारत का, वो समाज भारत में बहुत योगदान उसका है, हर तरह से देश की सुरक्षा से लेकर के, देश के कारोबार से लेकर के और देश के सामाजिक ताने बाने तक, क्योंकि सिख बहुत ही पीसफुल और बहुत ही मोहब्बत वाले लोग हैं। हर मसले में कोई भी मामला हो, फ्लड हो, सूखा है, बाढ़ है या कोई और मामला है, दंगे फसाद हो जाते हैं, कहीं धरने प्रदर्शन होते हैं, किसान आंदोलन हुआ, उसमें खाना पीना ये तमाम चीज़ें जितना दिल खोल करके वो लोग साथ में होते हैं। दुनिया भर में कहीं कोई आपदा होती है, सिख समाज के लोग वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की मदद करते हैं। खालिस्तान का मसला पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, दब चुका था। अब इस तरह की बातें सामने आने के बाद, चूँकि ये एक बहुत ही अलग मामला होता जा रहा है, जो बात ख़त्म हो चुकी थी खालिस्तान वाली, वो नए सिरे से पैदा क्यों की जा रही है। अमृतपाल सिंह का मामला हो या फिर ये गुरपंत सिंह पन्नू या और जो भी निज्जर वगैरह के, तो वो खालिस्तान के मूवमेंट को ज़िंदा क्यों किया जाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि भारत में जो चीज़ें हैं वो आप सब जानते हैं। एक वीडियो और हम दिखाना चाहेंगे, वो आप देखें और उसके बाद थोड़ी सी और बात करना है, वो बात भी फिर की जाएगी। ये मेजर गौरव आर्या है, इनके आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे। गौरव आर्या के पूर्व रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं। ये बड़ी ज़ोरदार बातें करते हैं और बड़ी भड़काऊ बातें भी होती हैं इनकी बहुत बार, और इस तरह की बातें होती हैं जो फंसा दे, देश को भी फंसा दे और चीज़ों को भी उलझा दे। पहले अब इनको सुन लें। सिख भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो कहानियां हैं भाईचारे की, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक हम लोग एक हैं, खालिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ पड़ता रहेगा। जब हम दोनों के बीच में दरार आई तो खालिस्तानी जीत जाएगा। एक बात ध्यान रखना, और मैं ये खास तौर से सिख भाइयों से कह रहा हूं, खालिस्तानी जो है ये किसी के सगे नहीं है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करिए जितनी आप रामायण की करते हैं। आप गुरुद्वारा साहब की उतनी इज्जत करिए जितनी आप अपने खुद की मंदिर की करते हैं। जो सिख है आप उसकी उतनी इज्जत करिए जितने आप खुद के घर वालों की करते हैं। तब पड़ेगा खालिस्तान की मुंह पे एक थप्पड़। और मैं सिख भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप आवाज उठाइए। ये गौरव आर्या थे। हमने चूँकि ये जो खबर आई है उससे रिलेटेड कुछ बताना था तो इनका ये वीडियो दिखाया है। एक वीडियो इनका और भी है, वो आप सोशल मीडिया पे तलाश कर सकते हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से किस तरह से थर-थर कांपते हैं खालिस्तान के जो भी लोग हैं
और लॉरेंस बिश्नोई जो भी चाहे वो कर सकता है। उसके पास सैकड़ों हज़ारों शूटर्स हैं, लोग हैं, और वो जब चिट्ठी भेज देता है किसी के पास भी, खालिस्तान वाले के पास, या कॉल कर देता है तो वो कांपने लगते हैं और ये ठुकेंगे। उस वीडियो में आप इनके भाषा भी देख सकते हैं, उसमें ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ठुकेंगे खालिस्तान के जो लोग हैं, और कुछ दिन के बाद वो ठुकना शुरू हो जाते हैं। तो खिचड़ी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अचानक चीज़ें ऐसा पैदा होती नहीं, और एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है कनाडा भी। गौरव आर्या एक रिटायर्ड फौजी हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के वो बता रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई एक डॉन है और जेल में बंद है। वो बता रहे थे इस दौरान निज्जर की हत्या हुई थी और कनाडा की तरफ से आरोप लगे थे भारत के ऊपर। तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और ये हर मौके पर हर बात पे बताते हैं और पूरा तरीका समझाते हैं कैसे किसको क्या करना चाहिए। ये फ़लस्तीन इसराइल की जंग के दौरान फ़िलहाल इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, या हो सकता है मेरी नज़रों से न गुजरी हो, वरना ये बताते हैं। वो रिटायर्ड फौज सैनिक है भारत के, बड़े अधिकारी रहे मेजर की रैंक पर, तो इनको चीज़ों की ज़्यादा गहराई से जानकारी है। उन्होंने कहा था कि निज्जर खालिस्तानियों का जो इलाज है वो लॉरेंस बिश्नोई के पास है, और लॉरेंस बिश्नोई के हज़ारों शूटर हैं जगह जगह फैले हुए हैं, और वो किसी खालिस्तानी के पास कोई चिट्ठी भेज दे या ख़त भेज दे तो इनका हाल ख़राब हो जाता है, और ये ठुकेंगे जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर वो ठुकना पिटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स, अब चूँकि कनाडा की तरफ से बात थी तो भारत ने उसको इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से डिनाई कर दिया। अब ये बात है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका भारत का दोस्त मुल्क है, कनाडा भारत का दोस्त मुल्क है, ब्रिटेन भारत का दोस्त मुल्क है, जापान भारत का दोस्त मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत का दोस्त मुल्क है। 5 आईज एक संगठन है 5 देशों का, जिनके बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। ये आपस में किसी भी तरह की कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो एक दूसरे मुल्कों को आपस में बताए थे। कनाडा में जो हत्याएँ हुई थी उसकी जानकारी 5 आईज के 2 कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा को दी थी
कि इसमें भारत की एजेंसियां शामिल हैं जो हत्या हुई हैं निज्जर की और दूसरे लोगों की। अब ये भारत ने उसको इनकार कर दिया था कि हमारा कोई मतलब नहीं। अब अमेरिका में इस तरह की खबर आ रही है कि अमेरिका के अंदर कोशिश की गई। अब ये कोशिश जो है उस पर भारत की तरफ से कैसे बचाव किया जाएगा, अमेरिका को कैसे मुतमईन किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में, शायद ईयर ठीक से याद नहीं है, 2019 ही की बात है, एक खबर छापी थी, बड़ी खबर थी वो, और हमने तीसरी जगह में उसको पब्लिश किया है। वो खबर का लिंक मिलेगा तो हम आपको देंगे। खबर थी कि श्रीलंका में न्यू ईयर के दौरान चर्चों पर जो हमले हुए थे, सीरियल हमले थे वो, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। वो भारत की एजेंसियों ने ISIS, नाम याद रखिए, ISIS, दाइश के साथ मिलकर करवाए थे। भारत के मीडिया ने उन हमलों को बताया था कि इसमें कश्मीर के आतंकवादी शामिल हैं और पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी थी कि ये दाइश के ज़रिए भारत की खुफिया एजेंसियों ने करवाए। उसी में पूरी रिपोर्ट का थोड़ा सा हम यहाँ बता रहे हैं। उसी में बताया गया था कि भारत की एजेंसियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के बाहर गुरुद्वारों पर हमले करवाए, जिसमें जलालाबाद, काबुल और एक दो जगह के और भी नाम शामिल थे। उसी में खबर थी कि टर्की के अंदर और कनाडा के अंदर भारत की एजेंसियों ने हमले करवाए। 2019 और 23 कई साल का वक्त है। उस खबर पे किसी तरह का कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं हुआ था जो फाइनेंशियल टाइम्स ने उस वक्त छापी थी। यहाँ लेकिन हमारे भारत के कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया के में बड़े प्लेटफॉर्म्स ने उसको पब्लिश किया था। ये ट्रेंड बहुत ख़राब है घर में घुस के मारने का। भारत गांधी का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी की पहचान है सत्य और अहिंसा, और यही भारत की ताकत भी है। आज दुनिया में कहीं भी भारत की जो भी रेस्पेक्ट है वो गांधी के विचार की वजह से है। सारा किया कराया इस तरह से खराब हो रहा है, हो जाएगा और बचा कुचा। दूसरे देशों में हत्याओं के आरोप भारत की एजेंसियों पर लग रहे हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है, और आने वाले वक्त में इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से, दूसरे नंबर पर रशिया है। कनाडा के पास बेशुमार अपना वसाइल हैं, उसकी दुनिया में एक पोजीशन है। यूरोप के देशों से उसके बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। अचानक से ये जो खालिस्तान और खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान की बात ख़त्म हो चुकी थी। अमृतपाल पन्नू पैदा हो जाते हैं और फिर ये कनाडा में हत्याएं हो जाती हैं। जो बात ख़त्म हो चुकी, जो इशू ख़त्म हो चुका, उसे पैदा क्यों किया जा रहा है नए सिरे से? ये सोचने वाली बात है। अखंड भारत की बात होती है, ये अखंड भारत के रास्ते में तो रुकावट है। भारत में रह रहे सिख समाज के लोग, उनका भारत के लिए बेशुमार कंट्रीब्यूशन है। देश की सरहदों से लेकर के हर जगह पर उनकी मौजूदगी है, और वो अपना 100% देते हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करते हैं। देश के अंदर हो, विदेशों में हो, कहीं किसी तरह का कोई मसला है, कोई क्राइसिस है, कोई डिजास्टर है, फ्लड है, ड्रॉथ हो जाती है, और कोई मामला हैं, सिख समाज के लोग वहाँ मौजूद होते हैं मदद करने के लिए इंसानियत के नाते। कहीं ज़लज़ले आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, सिख समाज के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। CNRC का प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन है, और भी कहीं कोई मसला होता है, सिख समाज के लोग
वहाँ जी जान से सेवा में लगते हैं। जो समाज जो लोग सिख धर्म के लोग इंसानियत परस्त हैं, इतना भले लोग हैं, उनको थोड़ा सा इस तरह से न हो। देखिए सेंटिमेंट्स होते हैं, कभी रही थी खालिस्तान की बात, अब नहीं रही थी, इसको पैदा न किया जाए, ये बहुत नुकसान की बात है। और जो आरोप लग रहे हैं वो तो बहुत ही गंभीर हैं। कनाडा को भारत की सरकार ने मना कर दिया था, कह दिया था कि ऐसा हमारा कोई दखल नहीं है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। अमेरिका से अब ये बात उठी है। भारत विश्वगुरु है वैसे तो, अमेरिका कनाडा की कोई बिसात नहीं उसके सामने। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखभाल के रहम करते हुए हर जगह बुलडोज़र मत चलाइए। बुलडोज करने से चीज़ें ख़राब होती हैं। शुक्रिया।